A very good morning to all my dear students. Today we are going to start with chapter 2 Statistics for Economics, and name of the chapter is Collection of Data. As we have already discussed in detail, statistics in singular sense involves the 5 steps. We also call it statistics as a methodology. So, the very first step of the statistical study is collection of data. This is the name of this chapter. First of all, the data are collected from various sources. Second step is the organization of data. We have to organize all this data in a proper way. Then is a presentation of data in the form of tables, graphs, diagrams. After that is our next step, which is analysis of the data. We have various techniques to analyze the data. Like we have the techniques like measures of central tendency, mean, median, mode, measures of dispersion, correlation, index numbers. These all are the topics we will study later on, which are the part of our syllabus. Now we are going to start with the chapter collection of data. Since we already know that collection of data is the first step of any statistical study. So what we have written here, if you see, it is the first step of any statistical study. कोई भी statistical study अगर हमें करनी है, उसका पहला जो step है वो है collection of data. It means है क्या? Gathering facts. कौन से facts? Numerical facts, quantitative facts. कहाँ से gather कर रहे हैं? From various sources related to the present study. जो स्टडी हम कर रहे हैं उसके फैक्ट्स को हम वेरियस सोर्सेज से गैदर कर रहे हैं, अलग अलग सोर्सेज से हम उनको इकट्ठा कर रहे हैं. इसको बोलते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा. ब्रॉडली हमारे पास 2 सोर्सेज हैं डेटा को कलेक्ट करने के. यू सी हियर द वेरी फर्स्ट सोर्स इज कॉल्ड प्राइमरी सोर्स, and the second source is called secondary source. Dear students, now let me clear one by one primary source क्या है, secondary source क्या है. Primary source, the source from which the data are collected for the first time from the beginning to the end, they are the primary source. What does it mean? From the beginning to the end. For example, I want to study the marks of all the students, the academic performance of all the students of class 11th. So what I will do? I will call you one by one and collect the information regarding your academic performance. Your marks of class 10th or 9th or 8th, or maybe class 10th is sufficient. So, this way I will collect the data. So, this source is called primary data, primary source, and the data collected from this source will be known as the primary data. So, the source from which the data are collected for the first time from the beginning to the end, they are called primary source of data, and these data are called the primary data. Data is not singular, data are plural. Datum is singular. Then comes the second one, secondary data, or the secondary source of data. Source in which we take the help of already collected data. Already collected data has been collected by someone, used by someone else. Like we take the help of the published sources of the data or unpublished sources. So all these are called the secondary source of data, and the data collected is called the secondary data. So we have just
made clear two things. One is a primary source of collecting the data, other is a secondary source of collecting the data. Now we are going to study the difference between the primary data versus secondary data, which is most important. First is the difference basis is originality. The data which are originally collected by the investigator himself or herself. Suppose I am collecting the data regarding your academic performance in class 10th. Originally I am doing it. So these data are called primary data. What about the secondary? These are not original, as these are collected by someone and used by someone else. This is the main difference. These are original as these are collected by the investigator himself. These are not original as these are collected by someone and used by someone else. So this is the main difference between the first difference between the primary versus secondary data, and the first difference is very clear. It is on the basis of originality. These are original, these are not original. Second is a time factor. You know, when you will collect the data, you require a lot of time. You have to go, you have to meet that person concerned. Suppose you want to collect the data from 50 students, you have to call the 50, you have to just give attention, you have to take lot of time. So it is more time consuming process. प्राइमरी डेटा की कलेक्शन बहुत ही समय लगने वाला प्रोसेस है, आसानी से नहीं होगा, क्योंकि यहां आप अपनी मेहनत से डेटा कलेक्ट कर रहे हो. लेकिन सेकेंडरी डेटा में दिस रिक्वायर लेस टाइम. किसी ने कलेक्ट किया, नकल करनी आसान है और खुद याद करके लिखना मुश्किल है. तो सेकेंडरी डेटा तो नकल है और प्राइमरी डेटा ओरिजिनलिटी है. तो ओरिजिनल होना ज़िंदगी में हमेशा मुश्किल होता है, किसी की कॉपी करना बहुत आसान होता है. देन कम द थर्ड फैक्टर. ओरिजिनलिटी वी डिस्कस्ड, टाइम फैक्टर वी डिस्कस्ड, कॉस्ट. Yes, of course. Collecting the primary data is a costly affair. काफी कॉस्ट लगेगी. क्यों लगेगी कॉस्ट? आप खुद जाओगे, पर्सन कंसर्न से मिलोगे, कई बार वो आपको मिलेगा ही नहीं. क्यों? हो सकता है वो बिजी हो. ये तो स्टूडेंट है, चलो स्कूल में आ गए, आप क्या, हमने डेटा कलेक्ट कर लिया. लेकिन आप मान लो, एक एग्जांपल है कि स्टूडेंट मान लो जिस दिन डेटा कलेक्ट किया स्कूल में नहीं आया, फिर आपको वेट करनी पड़ेगी अगले दिन की. तो इसका मतलब कुछ भी अगर हम बात करते हैं कि प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करना एक कॉस्टली अफेयर है, या आपको काफ़ी सारा टाइम भी लगाना पड़ेगा, पैसा भी खर्चना पड़ेगा, तब ये डेटा आप कलेक्ट कर पाओगे. एंड सेकेंडरी डेटा की अगर हम बात करें, इट इज़ चीपर एज इट इज़ टेकन फ्रॉम द पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड मटेरियल. पहले से जो मटेरियल है उसके बेस पर ही हमने इसको कलेक्ट करना है, तो ये आसान है. जबकि ये बहुत ही कॉस्टली अफेयर है. इसमें आपको टाइम लगाना है, इसमें आपको पैसा लगाना पड़ेगा, और यहां आपका टाइम भी कम खर्च होगा सेकेंडरी डेटा में, और पैसा भी कम खर्च होगा. लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ रहा है, रिलायबिलिटी एंड सूटेबिलिटी. अगर हम भरोसे की बात करें, रिलायबिलिटी की बात करें, सूटेबिलिटी की बात करें, तो कौन सा रिलायबल है ज़्यादा? जिसमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है ना, वो हमेशा भरोसेमंद होता चीज़. देयर इज़ नो सब्सटीट्यूट ऑफ हार्ड वर्क. मेहनत का जो है कोई सब्सटीट्यूट नहीं है. गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ. यहाँ भी वही है. दीज आर मोर रिलायबल एंड सूटेबल टू द इंक्वायरी एज द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ कलेक्ट्स इट. These are less reliable and suitable as someone else has collected these data which may not serve the purpose. हो सकता है हमारा पर्पस सॉल्व ना हो. तो ये हमने 4 डिफरेंसेस पढ़ लिए प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी डेटा. होप कि आपको क्लियर हो गए होंगे. अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं. अगला टॉपिक हमारा है मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग द प्राइमरी डेटा. क्या मेथड्स हैं प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के? हमारे पास प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के 4 मेथड्स हैं.
हम इसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले 4 नाम मैं डिस्कस कर लूं जरा। चारों मेथड्स के नाम क्या हैं? डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इसको पर्सनल इंटरव्यू के नाम से जाना जाता है। दिस इज योर मेथड नंबर 1, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। सेकेंड इज अ इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, मेथड नंबर 2। प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के मेथड की बात करें, याद रखना, इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंट्स, मेथड नंबर 3। इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनियर एंड स्केड्यूल्स, मेथड नंबर 4। अब हम एक एक करके इन मेथड्स को डिस्कस करेंगे। पहले बात करते हैं डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। आप देखते हो न्यूज़ चैनल्स पर सीधी बात, जहां सेलिब्रिटीज़ या पॉलिटिशियंस सामने बैठकर बात करते हैं, जो आपका टीवी एंकर है, जो आपका इंटरव्यू ले रहा है उनका, वो सामने आपस में आमने सामने बैठते हैं और उनका पर्सनल इंटरव्यू होता है। नेचुरली बात है, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ स्किल टू टेक अ इंटरव्यू ऑफ एनी सेलिब्रिटी और एनी पॉलिटिशियन। उस पर्सन का एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए इसको डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, डायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन के नाम से भी जाना जाता है। ज़्यादातर जब हम किसी भी जॉब में जाते हैं, रिक्रूटमेंट जब होती है, तो उसका एक पार्ट होता है हमारे उस जॉब को अटेन करने का पर्सनल इंटरव्यू। क्यों? हाउसएवर द एम्प्लॉय इज टैलेंटेड, अगर उसका एक्सप्रेशन बढ़िया नहीं है, उसके पास नॉलेज है बट वो उसको ट्रांसलेट नहीं कर पाता अपनी डेली लाइफ में, तो वहाँ उसका डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू में वो क्लियर दिख जाएगा उसका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। जिससे हमने पूछना है हमने उसको बुलाया और उससे उसका सारा डेटा कलेक्ट कर लिया। बट यहां एक बात और ध्यान देने वाली है, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान देनी होगी कि ये टाइम कंज्यूमिंग तो है, पैसा भी लगेगा, लेकिन अगर एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन बहुत लार्ज है वहां ये मेथड सुटेबल नहीं। When the area of investigation is too large, this method is not suitable, क्योंकि वहां हमें बहुत मैन पावर की जरूरत होगी और बहुत ज्यादा उसके लिए टाइम चाहिए, तो वहां पर आप डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू यूज नहीं कर सकते। सेकेंड इज अ इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन एक ऐसा मेथड है जहां आप जिस पर्सन के बारे में जानना चाहते हो और जो इंक्वायरी आपको करनी है वो इंक्वायरी इनडायरेक्टली आप कर सकते हो। कैसे? आप उस पर्सन को जानते हो जिस पर्सन के बारे में अपने इंक्वायरी करनी है। मान लो आपने रमेश के बारे में पूछना है। अब रमेश से जो रिलेटेड लोग हैं, उसके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, नेबर्स, आप उसके बारे में क्वेरी करो। मैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, जैसे हमने किसी यूनिवर्सिटी के बारे में, किसी कॉलेज के बारे में एडमिशन लेने से पहले जानना होता है, तो जो स्टूडेंट उसमें पढ़ रहे हैं पहले से, हम उनसे पूछ लेते हैं यहाँ हॉस्टल फैसिलिटी कैसी है, किस तरह का माहौल है, टीचर्स का किस तरह का ट्रेंड है। तो ये आपने डायरेक्टली नहीं पूछा, इनडायरेक्टली आपने उनके बारे में इन्वेस्टिगेट कर लिया। इवन आप किसी जगह पर अगर हाउस परचेज करते हो तो वहां किस तरह का माहौल है, क्योंकि डीलर से आप डायरेक्ट कांटेक्ट करते हो तो वो तो सब कुछ बढ़िया बताएगा, तो आप वहां का रेट क्या है, किस तरह का माहौल है, वहां नेबर से पूछ लोगे, इनडायरेक्टली किसी और से पूछ लोगे। आप ये नहीं बोलोगे हमने घर लेना है, आप किसी और क्वेरी इनडायरेक्टली करके वहां से अपनी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। जिनसे आप ये इंफॉर्मेशन लेते हो वो विटनेसेस होते हैं। कहीं कोई इंसिडेंट हो गया, मिस हैपनिंग हो गई, तो वहां जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो विटनेसेस हैं, उनसे आप पूछ सकते हो वहां की इंफॉर्मेशन। या एक चीज है कि इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी ऑथेंटिक,
बट आपको थोड़ा टेक्टफुल होना पड़ेगा, टाइम तो इसमें भी लगेगा, लेकिन यहां आप थोड़ा समय सेव कर सकते हो क्योंकि आप उससे रिलेटेड पर्सन से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। तो ये दूसरा मेथड हो गया प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने का। थर्ड मेथड जो हमने लिखा है, इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंट्स। आपके न्यूज चैनल इसका एग्जांपल है, न्यूज NEWS, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ऑल 4 डायरेक्शंस, सब जगह कॉरेस्पॉन्डेंट इंप्लॉय कर दिए। संवाददाता जिसको बोलते हैं, जो संवाद करते हैं, वहां से आपको इंफॉर्मेशन देते हैं, लाइव इंफॉर्मेशन देते हैं। एक मेन आपका जो है सेंट्रल ऑफिस है जहां पर न्यूज रीडर बैठा हुआ है, कॉरेस्पॉन्डेंट उसके सारे अलग अलग डायरेक्शंस में है, वो वहां से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं और विद इन अ नो टाइम वो उसको मेन ऑफिस में सप्लाई कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा मेथड है प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने का, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो कॉरेस्पॉन्डेंट आपको डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं उनका इंपार्शियल होना, उनका स्किलफुल होना बहुत जरूरी है। नहीं तो जो इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचेगी उसमें कोई ना कोई कमी रह जाएगी। तो ये है इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंट, बहुत ही पॉपुलर मेथड है। आज आप देखते हो कितने न्यूज चैनल्स हैं, उनके कॉरेस्पॉन्डेंट हर जगह हैं। रिपब्लिक भारत की बात करो, आज तक की बात करते हैं, जी न्यूज की बात करते हैं, बहुत ही अच्छे चैनल्स हैं, बहुत ही बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं और इनके कॉरेस्पॉन्डेंट्स हर एरिया में हैं और वहां से आपको बड़ी क्विक इंफॉर्मेशन मिलती जा रही है। तो दिस इज द थर्ड मेथड ऑफ कलेक्टिंग द प्राइमरी डेटा। नाउ वी कम टू द लास्ट मेथड। लास्ट मेथड आप देख रहे हो, इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनियर एंड स्केड्यूल। अब यहां 2 चीजें लिखी हैं, देखो, एक क्वेश्चनियर है, बी स्केड्यूल या शेड्यूल भी कह देते हैं। क्वेश्चनियर को हिंदी में कहते हैं प्रश्नावली, ग्रुप ऑफ द क्वेश्चंस रिलेटेड टू एनी पर्टिकुलर टॉपिक, उसको बोलते हैं क्वेश्चनियर। अब इस क्वेश्चनियर को जब हम डिजाइन कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, हम बाद में पढ़ेंगे, इससे अगला टॉपिक। क्वेश्चनियर इज अ ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर टॉपिक अबाउट विच वी वांट टू इंक्वायर। और क्वेश्चनियर हम 2 जगह पर यूज करते हैं। एक तो हमें पर्सनली इंफॉर्मेशन लेनी है कहीं जाकर, तो वहां भी हम क्वेश्चनियर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और अगर हमें बहुत दूर दूर के एरियाज की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो क्वेश्चनियर को हम मेल कर देते हैं, थ्रू मेल भेज देते हैं इंफॉर्मेंट्स के पास, और उसके अंदर एक कवरिंग लेटर होता है जिसमें लिखा होता है कि मैं कौन हूं और मैं ये इंक्वायरी क्यों कर रहा हूं, और ये एश्योरेंस दे देते हैं कि आपके द्वारा जो इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की जाएगी वो बिल्कुल ही सेफ रखी जाएगी। इससे क्या होता है, इससे जो इंफॉर्मेंट है, हमें इंफॉर्मेशन देने वाला, वो सिक्योर फील करता है और उसके द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन उसको लगता है कि सही हाथों में जा रही है, क्योंकि हमारा प्रॉपर एड्रेस, हमारा प्रॉपर फोन नंबर, डेजिग्नेशन मेंशन होता है क्वेश्चनियर के कवरिंग लेटर में, और विद इन नो टाइम हमें बहुत जल्दी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इसको हम मेलिंग मेथड भी बोलते हैं। दूसरा आपने देखा है, आपने लिखा है शेड्यूल या स्केड्यूल। अब क्वेश्चनियर वहां बहुत अच्छा मेथड है। अगर आप क्वेश्चनियर भेज रहे हो और वो पढ़ा लिखा है, लिटरेट है, एजुकेटेड है, तब तो क्वेश्चनियर बहुत अच्छी बात है। पर कुछ ऐसे एरियाज भी हैं जहां आपने क्वेरी करनी है, लेकिन जो आपका इंफॉर्मेंट है जिससे आपने इंफॉर्मेशन लेनी है वो लिटरेट नहीं है, इलिटरेट है। उस केस में क्या करना है? उस केस में जो इन्वेस्टिगेटर है, जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, वो खुद जाएगा, एक एक को बुलाएगा, उनको क्वेश्चनियर के लिखे हुए क्वेश्चंस को उनकी भाषा में समझाएगा, हिंदी में, हरियाणवी में, पंजाबी में, जिस भाषा में उसको समझ आ रहा है, और फिर उनसे पूछेगा आपका नाम क्या है। अब उसने नाम बताया, मेरा नाम राम है, तो उसने खुद अपने हाथों से भर दिया। किसने भरा?
जो इन्वेस्टिगेटर है, जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। इसी तरह वो पूछेगा आपकी एज कितनी है, आप क्या करते हैं, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आप कितनी इनकम कमा रहे हैं। अब जब ये सारे वो पूछ पूछ के भर रहा है, ध्यान देना, जिन क्वेश्चनियर्स को इन्वेस्टिगेटर खुद इंफॉर्मेट से पूछ पूछ कर भर रहा है, उनको स्केड्यूल या शेड्यूल के नाम से जाना जाता है। बस यही डिफरेंस है क्वेश्चनियर में और स्केड्यूल में, कि क्वेश्चनियर बोथ लिटरेट और इलिटरेट के लिए नहीं चलती, क्योंकि क्वेश्चनियर सिर्फ पढ़े लिखों के लिए, लिटरेट के लिए, एजुकेटेड के लिए। लेकिन स्केड्यूल जो आपका है वो एजुकेटेड तो उसको भर ही लेगा अपने आप, लेकिन वो आपके इलिटरेट के लिए भी है, क्योंकि उनको वो खुद भर रहा है। कौन भर रहा है? इन्वेस्टिगेटर। तो ये 4 मेथड्स हमने पढ़ लिए, मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग द प्राइमरी डेटा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। इसको अच्छी तरह से आप रिवाइज कर लीजिए जो टॉपिक हमने आज कवर किए, और इसमें जो भी आपको वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो जरूर इसे सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही मेरी मोटिवेशन है। आपको पसंद आया तो मुझे और अच्छा लगेगा और मैं इससे बढ़िया मैटर आपके पास भेजूंगा।